آئیں خداوند یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ میرے دوستو، خدا کی حمد، یہاں تک کہ نبی یونا خدا کے ساتھ بہت ناراض ہوا کیونکہ خدا نے اسے ایسریا کے دارالحکومت نینوا میں جانے کا کہا جو بابل کے لوگ تھے، اور وہ بہت خوفزدہ ہوا اور بھاگ گیا، لیکن اس نے کچھ اور نازل کیا۔ پھر بعد میں مچھلی نے اسے نگل لیا اور خدا نے مچھلی سے کہا کہ اسے سمندر پر اگل دے۔ مچھلی نے یونا کو اگل دیا جو بدبودار تھا۔ جب وہ باہر آیا اور یقیناً چند مرتبہ غسل کیا ہوگا، صحیح کم از کم 10 مرتبہ، اس بڑی مچھلی کے خوفناک پیٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مادہ جو مچھلی کے اندر تھا، کیونکہ اس نے 3 دن اس کے اندر گزارے۔ میں نہیں جانتا کس طرح وہ دنیا میں اس سب سے بہترین تیرنے والا بن گیا، اور یہ اور رو تھا، یہ اندھیرے میں تھا کیونکہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ بڑی مچھلی کے پیٹ میں تھا، اور میں واقعی نہیں جانتا کہ خدا نے یہ کیسے کیا، لیکن مچھلی گہرائی تک تیر سکتی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ گہرائی ایک شخص گہرائی میں جاتا ہے تو اندرونی اعضاء کے دباؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ مچھلی گہرائی میں تیری، اور پھر ننوا توبہ کیا، اور خدا نے مچھلی کو کہا اسے نکل جا، لہٰذا وہ ننوا گیا۔ اس نے تبلیغ کی اور ننوا کے لوگ تبدیل ہو گئے، اور ننوا بہت پریشان ہوا۔ ان کی گفتگو کے دوران ہم نہیں سمجھے کہ وہ وہاں کیا کرنے والا ہے۔ یہ اس کتاب کے 4 باب میں ہے۔ دیکھیں کتنا دلچسپ ہے۔ وہ خدا سے دعا کر رہا تھا، یہ باب 4 میں ہے، اور اس نے خدا سے یوں دعا کی کہ اے خداوند، جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم اور کریم خدا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور غضب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اس نے خدا سے کیا کرنے کی توقع کی؟ ان لوگوں سے بدخواہی کر جنہوں نے اس کلام کو سنا اور تبدیل ہو گئے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ خدا ہمیشہ یکساں رہتا ہے، چاہے آپ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے آپ خدا سے دور ہیں، لیکن اگر آپ کلام کو سنتے ہیں، یقین کرتے ہیں اور خدا کو پکارتے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں چلے گا، وہ آپ کو معاف کرے گا، وہ آپ کو دوبارہ تخلیق کرے گا، وہ آپ کو ایک بابرکت شخص میں بنا دے گا۔ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ یونا یوں کہتا ہے کہ تو رحیم و کریم خدا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور غضب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ پھر وہ چاہتا تھا کہ خدا اس کی زندگی لے، لہٰذا خدا نے اس سے چند سبق سکھائے، کیونکہ خدا بیوقوف کی دعا کا جواب نہیں دیتا۔ خدا کا شکریہ۔ کتنی مرتبہ ہم خدا سے وہ کہتے ہیں جو ہمیں کہنا نہیں چاہیے، اور یہ اس کا فضل ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس پر توجہ نہیں دے رہا۔ میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ آپ کو برکت دینا چاہتا ہوں۔ آج آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ برکت پانے آئے ہیں۔ ان کا جو گھر پر ہے، آپ برکت پانا چاہتے ہیں، تو آپ باقی سب کچھ بھول جائیں اور آئیں خدا کے ساتھ شامل ہو، کیونکہ خداوند خدا آپ کو برکت دیتا ہے، اور میں یہاں خدا کے نام میں آپ کو برکت دوں۔ جب میں چھوڑوں گا تب آپ برکت پائیں گے۔ میں مکمل کامیابی محسوس کرنا چاہتا ہوں اور کامیابی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہم ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس نے برکت، اس نے میرے کان کو شفا دی ہے۔ اگر میں اس کان کو ڈھانپ لوں تو کچھ نہیں اب سن اسے سکتی۔ ڈھانپ لے، اس طرف دیکھیں۔ آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ جواکیم۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ہمارے 3 بچے ہیں۔ آپ کے بڑے بچے کا کیا نام ہے؟ یہ ماریا جوانیر ہے۔ اور سب سے چھوٹے کا کیا نام ہے؟ ہاں، سب سے چھوٹے کا نام لوازر پیراسوزا ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ میری تاریخ پیدائش آئیں خداوند کو جلال دیں۔ بعد میں ہم اس کی یادداشت کے لیے دعا کریں گے۔ خیر، کئی سالوں سے جب ہم کریسز منتقل ہوئے تو ہم ایک گھر تعمیر کر رہے تھے، لہٰذا ہم ایک جھوپڑی میں رہ رہے تھے جس میں بہت ساری بیکار پرانی چیزیں تھیں، اور ایک تتلی میرے کان میں چلی گئی۔ اس وقت یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اس کو آلے سے نکالنے کی کوشش کی اور میرا کان زخمی ہو گیا، لہٰذا میں نے پرواہ نہیں کی اور پھر آہستہ آہستہ سننے کی سماعت کھو دی۔ تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی 30% سننے کی سماعت باقی ہے۔ ابھی میں نے اپنا کان ڈھانپا، اور جب ڈاکٹر سوال کر رہے تھے میں نے اسے مکمل طور پر سنا۔ خدا کا شکر ہو۔ آئیں خداوند یسوع کے لیے تالیاں دیں۔ صحیح عزیزو، اس کے اپنے الفاظ میں یہ ایک تتلی تھی جو اس کے کان میں چلی گئی تھی، لیکن تتلی اندر گئی اور باہر آ گئی اور اسے بہرا کر دیا، لیکن اب وہ یسوع مسیح کے نام میں کبھی بہری نہیں ہوگا۔ آمین۔ آئیں ایک اور گواہی کو دیکھتے ہیں۔ 20 سال پہلے میں گر گئی، ایک کھڑکی سے گر گئی اور نیچے۔ آپ کھڑکی میں کیا کر رہی میں تھی؟ کام کر رہی تھی۔ کام۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ پالوس رسول کے وقت میں وہاں یوکتس نامی ایک نوجوان تھا جو کھڑکی سے گر گیا کیونکہ وہ سو گیا تھا، جبکہ پالوس میں تربیت کھڑکی کر رہا صاف تھا۔ کر رہی تھی، پھر میں پھسل گئی اور گر گئی۔
कितनी बुलंदी ये से? तकरीबन 5 मीटर थी। क्या हुआ फिर? मेरी रीढ़ की हड्डी हर्निशन, मेरी रीढ़ की हड्डी में 5 डिस्क और मेरा घुटना और मेरा पाँव जख्मी हो गया। आपकी रीढ़ की हड्डी में 5 जी। जख्म हैं। फिर डॉक्टर ने इन्हें जोड़ा। फिर डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी का तयन किया, लेकिन उससे कोई मदद नहीं हुई। जब मैं अपने बिस्तर से बाहर निकलती, मैं इस तरह खड़ी नहीं अब हो दुआ से सकती पहले थी कैसे और चलती अब मैं इस तरह चलती थी कितने अरसे से? तकरीबन 20 साल सीधी से। खड़ी हो और मुकम्मल तौर पर चलें। हालेलू हालेलू हालेलूया हालेलूया। खुदा की हमद हो और आए यीशु के लिए तालियां बजाएं। ठीक है जीजो, खुदावन की हमद हो। सुने, आज हम बरकत पाएंगे। अगर अभी आपके पास बाइबल है तो आप खुदा के कलाम को खोलें। इमसाल की किताब बाब नंबर 19 और आयत नंबर 9। यहाँ एक अजीम सबक है, यहाँ एक अजीम तालीम है जो आपकी मदद करेगी। तो आज से आप तब्दील होना शुरू हो जाएंगे जैसे आप बात करते हैं। मेरे दोस्तों, इमसाल 19:9 में लिखा है, झूठा गवाह बेसजा ना छूटेगा। गवाह होने का क्या मतलब है इस सूरत हाल में जहाँ खुदा फरमा रहा है कि यहाँ झूठे और सच्चे गवाह हैं? झूठा गवाह क्या है? यीशु ने ये कहा, लेकिन जब रूह कुद्दूस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदा और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। इसका मतलब है सच्चाई खुदा की चीज है जो उसने की। तो अगर आप अपनी कमजोरियों से गालबा नहीं पा रहे, फिर आपको मसाइल होंगे। क्यों? क्योंकि आप झूठे गवाह हैं। किस तरह एक गैर ईमानदार ईमान ला सकता है कि अंजील सच्ची है, अगरचे वो अपने दिल में महसूस करे ये सच्ची है? अगर आप जो यीशु से ताल्लुक रखते हैं अपनी जिंदगी गुनाह में गुजारते हैं, हमेशा वो करते हैं जो गलत है, कभी दुआ नहीं करते, झूठ बोलते हैं और आपकी जिंदगी को मसाइल घेर लेते हैं। खुदा कहाँ है जिसने आपको पैदा किया? आपने किस को बुलाया? झूठे गवाह होना खतरनाक है क्योंकि ये शख्स बेगुनाह ना छोड़ा जाएगा, वहाँ सजा होगी। तो अब मुझे आपको हम सब को बाइबल देखने की जरूरत है और हम जो भी सीखते हैं वो हमसे ताल्लुक रखता है। हमें इसे पकड़ना है और यकीन रखना है, इसे का दावा करना है और वो सब कुछ करें जो सही है। और फिर हमारे रिश्तेदार हमें देखेंगे और कहेंगे, वाह आपको शफा मिल गई है। दूसरे कहेंगे, खुदा की हमद हो, ये शख्स शफा पा गया। और यही है जो खुदा आपकी जिंदगी में करना चाहता। आए आप सैमुएल की किताब बाब नंबर 30 पर चलें। दरअसल मैं सिलसिला जारी रखना चाहता हूँ जो मैंने अपनी गुज़िश्ता इबादत में शुरू किया। यसाया 41:10 की किताब जो मैं समझना चाहता हूँ, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। मैं इस कलाम की मुनादी कर रहा हूँ क्योंकि खुदा हमारी मदद करता है। दाऊद बादशाह को साउल बादशाह के जरिए सताया जा रहा था। दाऊद बादशाह नहीं था, लेकिन साउल ने महसूस किया कि इसके पास खुदा की बरकत है, इसलिए वो इसे मारना चाहता था। कत्ता नजर के दाऊद ने फलस्तीनियों से पनाह तलब करने की ख्वाहिश की ताकि वो वहाँ छुप सके और महफूज रहे। दाऊद मेरा मतलब के साउल से जब फलस्तीनियों ने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया था और दाऊद ने इनके साथ जाने की पेशकश की, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करो ऐ बादशाह, ये आदमी इनमें से एक है। अगर साउल ने 1000 गुजारे तो दाऊद ने 10,000 गुजारे। वो हमें धोखा दे रहा है, लिहाजा उन्होंने इसे शामिल नहीं किया था। फिर वो अपने आदमियों के साथ वापस इसराइल चला गया और जब वो तला पहुंचा, अब हम साउल की तरफ चलते हैं। बाब 30 आयत नंबर 1। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सलाता में पहुंचे तो देखा कि अमलीकियों ने जनूबी हिस्सा और सलाक पर चढ़ाई करके सलाक को मारा और आग से फूंक दिया और औरतों को और जितने छोटे बड़े वहाँ थे सबको इसरा कर लिया। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया बल्कि उनको लेकर चल दिए थे। सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे तो देखा कि शहर आग से जल पड़ा है और उनकी बीवियां और बेटे और बेटियां ऐसा हो गई हैं। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, यहाँ तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही। बाज़ अवक़ात कुछ चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं जो हमें कहने के काबिल बनाती हैं, खुदा मुझे समझ नहीं आती, और हम रोते हैं। सो मुहतात रहो, वैसा ना कहो जैसे योना ने कहा था। इस वक्त खुदा से हिकमत को मांगे।
میں سمجھ نہیں سکتا، لیکن میرے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ ساؤل داؤد کو قتل کرنا چاہتا تھا تو وہ فلسطین کو بھاگ گیا، وہاں ساؤل سے خود کو چھپانے کے لیے۔ ساؤل اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن خدا داؤد کو چھونے کی اجازت نہیں دے گا۔ لیکن اب داؤد جب گھر واپس لوٹ رہا تھا، وہ اپنے شہر کو جلا ہوا پایا۔ خدا نے اسے محفوظ نہیں کیا تھا، ہر کسی کو گرفتار کر لیا گیا تھا، یہاں تک کہ داؤد کے بچوں کو بھی اور ہر ایک بچے کو۔ تب داؤد اور اس کے لوگوں نے رونا شروع کیا۔ لیکن جب آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ اچھا ہے کہ آپ روئیں، کیونکہ آپ خود کو بوجھ سے ہلکا کریں اور اپنے آپ کو کھولیں۔ اور داؤد کی 2 بیویاں ایزائیلی اخمونوئم اور کرمالی نابیل کی بیوی اجیل اسرا ہو گئی تھی، اور داؤد بڑے شکنجہ میں تھا۔ دیکھیں یہ کتنا دلچسپ ہے۔ خدا کا عظیم ہیرو اب بہت پریشان تھا، کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے۔ اور آگے کیا ہوا؟ پھر داؤد نے اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، راسا نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دائیں ہاتھ سے تجھے سنبھال لوں گا۔ داؤد نے خدا کے وعدے کو لیا اور خود کو مضبوط کیا۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کی طاقت نہیں رہی، میں سب کچھ کر چکا ہوں ڈاکٹر صاحب، کچھ نہیں کام آ رہا میرے بھائیوں، اب آپ کو ان چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے جو آپ نے پہلے ہی کی ہیں، تو اب اپنے مسائل سے ہرگز نہ گرزائیں اور یہ کریں، اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط بنائیں۔ خدا تو نے مجھے مضبوط کرنے کا دعویٰ کیا ہے، میں اب یہاں ہوں، میں اس سے دعا کے بارے میں کہہ رہا ہوں، برائے کرم مجھے میری تمام غلطیاں دکھا، کیونکہ شاید وہ بہت سی ہیں۔ میرا ہر ایک وہ چیز جس کو کھویا چاہ چکا ہوں، میری طاقت اور اجر کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے آپ کو خداوند میں اس لمحے مضبوط کریں۔ آپ ایک حکم جاری کریں، جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو قوت ملی ہے تو حضوری کے اس لمحہ کو نہ کھوئیں۔ آپ اس بات کا سامنا کریں گے، سوچنے، سننے اور دیکھنے کے لیے اور بولنے کے لیے، جیسے یسوع نے اس لمحہ میں کیا۔ آپ اپنی مشکل کو یاد کریں، اب میں شیطان دیکھ تیری طاقت کو توڑنے لگا ہوں، یہ یسوع کے نام میں ٹوٹ گئی ہے۔ بیماری نکل جا، درد نکل جا، تکلیف ختم ہو جا، مایوسی چلی جا۔ آپ کو حقیقی برکت کے ساتھ اٹھنا ہے۔ یہ آپ کے لیے آج خدا کا پیغام ہے۔ خداوند میں خود کو مضبوط کرے، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دائیں ہاتھ سے تجھے سنبھال لوں گا۔ اب میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ باپ، تیرے اس کلام کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ وہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو پریشان ہیں۔ باپ، مصیبت، مایوسی، پریشانی، ان کی قیمت بہت زیادہ ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ شخص کہہ رہا ہے میری مدد کر خدا، میری مدد کر۔ او باپ، برائے مہربانی اس شخص کی مدد کر خداوند۔ اب میں ہر بری قوت کو باندھتا ہوں جو اس شخص کی زندگی کے خلاف آ رہا، اور میں اب حکم دیتا ہوں، شیطان ہر اس چیز کو لے جو تجھ سے تعلق رکھتا ہے، ہر ایک چیز، اور اس شخص کو اب یسوع کے نام میں چھوڑ، باہر نکل جا، اور یسوع مسیح کے نام میں کبھی واپس نہ آنا۔ یہ حکم دیتا ہوں، اور آپ میرے بھائیوں کہو یسوع تیرے شکر گزار ہیں، آمین۔ اب میں یہاں ان لوگوں کے لیے ایک خصوصی دعا کرنا چاہتا ہوں جو اپنے گھٹنوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ ڈاکٹر سوارس، میں اپنی ٹانگ کو جھکا نہیں سکتا، یہ بہت درد کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے گھٹنے کی چپٹی تبدیل کرنے کی وجہ سے سرجری کرانے کی ضرورت ہے، اس کی وجہ سے کارٹلیج کے لباس پہنے اور آنسو کی وجہ سے۔ آپ میں سے کون ہیں؟ سامنے آئے یسوع کے نام میں۔ یہ آج آپ کے لیے خوش قسمت دن ہے، خدا کے جلال کے لیے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ خدا کا ہاتھ یسوع کے نام میں آپ پر کام کرے۔ آپ جو گھر میں ہیں، آپ کو بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، کیونکہ میں آپ کے لیے خصوصی دعا کروں گا مسیح کے نام میں، اور وہ ضرور ہم سب کو جواب دے۔ برائے کرم ہر کوئی اب میرے ساتھ دعا کرے۔ آپ اپنے مصائب اور نہ ہی تکلیف پر توجہ دیں۔ داؤد نے پکارا جب اس نے دیکھا تھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے خود کو خدا میں مضبوط کیا۔ خداوند خدا لوگوں میں کوئی امتیاز نہیں کرتا، وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا، وہ اس طرح علاج کرتا ہے، اس لیے مرد یا عورت سب برابر ہیں، اسی طرح ہم سب ایک ہی ہیں۔ میری طرف دیکھیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں جادوگر نہیں ہوں، طاقت مجھ میں نہیں ہے، طاقت ایمان میں ہے جو خدا نے آپ کو دی ہے اور مجھے بھی دی ہے۔
जैसे आप यहाँ इकट्ठे हैं यीशु के नाम में। अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जैसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। और खुदा अब ये करने जा रहा है, मैं दुआ करूंगा और खुदावन लोगों को छूने जा रहा है। आप बहुत ज्यादा शिफा देखेंगे, जल्दी आते। आप जो नहीं कर सकते थे वो करेंगे, लेकिन खौफ के बगैर। लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ा सा हिलाया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। तो फिर आप दोबारा यीशु के नाम में करें और फिर यीशु के नाम में, और जल्द ही आप मजीद कर पाएंगे। अब दुआ करें, अपने सर झुकाएं, आंखें बंद। बाप, मैं इन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ, अपने ईमान को इनके साथ जोड़ता हूँ जो अब यहाँ हैं, जो लोग घर में हैं, यहाँ तक कि जो अस्पताल में मौजूद हैं, जो घुटने की सर्जरी होने का इंतजार कर रहे हैं। बाप, ऐ बाप, ये तेरे लिए हैरत अंगेज वक्त है कि इनके घुटनों पर काम कर, इनके लचकार, इनके घुटनों, इनकी पट्ठों से बाहर, इनके जो कुछ भी हो सकता है। बाप, मैं तेरे कलाम को और तेरे से दुआ करता हूँ, कहता हूँ नीचे आ और इनको छू और इन सब को शिफा दे, इनके सर के ताज से लेकर पाँव के तलवों तक। बाप, मैं तुझसे कहता हूँ ज़ाती तौर पर शिफा दे। और जो भी घर में है दुआ करें मेरे खुदा को जलाल मिले जो भी यहाँ होने जा रहा है, क्योंकि मैं दुश्मन के हर अमल को, शैतान के हर काम को यीशु के नाम से इस शख्स की जिंदगी से बाहर निकलने का कहता हूँ। छोड़, इनको परेशान करना बंद कर दे यीशु के नाम में। हर खराब काम जो गैर जानिबदार है यीशु के नाम में बाहर आ। और आप कहते हैं यीशु तेरा शुक्रिया। अगर आप यकीन रखते हैं अपने हाथ उठाएं और कहें खुदावन मैं यकीन करता हूँ। अब आप अपने घुटनों को उठाने लगे हैं और आप सब कुछ कर रहे हैं जो आप पहले नहीं करने के काबिल थे। जो भी आप करने के काबिल नहीं थे अब 10 बार करें यीशु के नाम में। उनके लिए जो पहले करने के काबिल नहीं थे, मैं देख सकता हूँ कि बहुत से लोग अपनी टांगों को एक तरफ से दूसरी तरफ हिला रहे हैं। डॉक्टर साहब, यीशु ने मुझे शिफा दी है। आप में से कौन है जिसने शिफा पाई? अपने हाथ को उठाएं। देखें अजीजों, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तकरीबन 100% लोग। आपके साथ क्या हुआ? मेरे बाएं घुटने में सोजिश थी। कितने अरसे से? तकरीबन 15 साल आप से। पहले क्या करने मैं इस के टांग को काबिल झुका नहीं सकती थी, मैं वर्जिश नहीं कर सकती थी। इस टांग को अलग थलग रखने की आदी थी। आप किस तरह? डॉक्टर ने मुझे बताया कि इस टांग को झुका नहीं सकती। आप कैसा है? ओ खुदा मुहीब है, पाक है। ओ खुदा को जलाल मिले, हमारा खुदा हैरत अंगेज है। ओ यीशु के लिए तालियां बजाएं। आपका क्या मतलब था बहन? मेरा मसला इस घुटने के साथ था। देखो यहाँ आर्थरोसिस। अथरोसिस। जी हाँ, मैं हर तरह के इलाज से गुजर रही हूँ, लेकिन कितने अरसे से आपको ये तकलीफ ये थी? तकरीबन 4 साल हो गए कि मुकम्मल कैसा इलाज है? करा रही हूँ। क्या आप अब सब कुछ आ देखो चुका है? यीशु ने अब मुझे आप अपनी शिफा टांगों अता को की झुका है, सकते खुदा हैं का यीशु के शुक्र नाम हो। में। अब कैसा है मैं? मेरे घुटने में पिछले तकरीबन 4 साल से दर्द है। 4 साल। जी हाँ, अब ये तकलीफ दे नहीं है। मैं आज भी आने वाली शैतान नहीं आपको आने थी, नहीं दे रहा था कि अपनी बरकत लेकिन हासिल खुदावन करें। मुझे लाया। आपको क्या हुआ बहन? ओ मेरी दोनों टांगों में 15 साल से मसला है। 15 साल से। अब कैसा देखो देखो देखिए ओ देखिए, खुदा, कोई तकलीफ ये हो। मौजा था। बहन आपका क्या मसला था? डॉक्टर सवारिस, मैं लंगड़ा रही थी, मैं अपने पंजों पर चलकर आई। डॉक्टर ने कहा मेरे कार्टिलेज का मसला है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कहा मेरा खुदा इसे शिफा दे सकता है, और आज मैं अब कैसा शिफायाबी है? की तलाश में आई हूँ। अब आप आजाद तो हैं? आज मैं मामूल से चल रही खुदा को हूँ। जलाल मिले। आपका क्या मसला डॉक्टर है? स्वारिस, मेरे घुटनों में बहुत दर्द था। जब मैं चलती तो बहुत मुश्किल होती थी। अब मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, मैं अब कोई ये दर्द चला महसूस गया। नहीं करती। क्या वहाँ कोई और है जिसे इस तरह की शिफा मिली हो? आप क्या हुआ भाई? 3 साल पहले मैंने घुटने की परेशानी का सामना किया। ये कैसे हुआ? हिफाजत के लिए घुटने का पैड। हाँ, ये कैसे था? मैं फुटबॉल खेल रहा था हाँ, और मैंने झटका खाया और गिर गया और बहुत तकलीफ होती आप ऐसा थी। नहीं कर सकते थे। मैं नहीं कर सकता था। खुदा की मैं तारीफ शफायाब हो। हूँ। हमारा खुदा देखें, हमारे पास और गवाही का वक्त नहीं है, लेकिन जो आपने शफा पाई इस तरह हाथ उठाया कि खुदावन तेरे शुक्रगुजार हैं। अपनी शिस्तों पर बैठ जाएं। अब यीशु के नाम में हकीकी जिंदगी की कहानी देखते हैं।
2010 में ब्राजील के इंस्टीट्यूट और आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता मरदमशुमारी के मुताबिक रियो ग्रेंजी में 44% अफराद की तादाद हो गई थी। इस तरह घरेलू खतरे में इजाफा हुआ। एडलेना का हादसा इस तरह हुआ और वो गिर गई जब वो कपड़े लटका रही थी और उसे बहुत चोट लगी, उसे दर्द हुई, लेकिन उसने बर्दाश्त किया। ये बहुत खतरनाक था। मैं बहुत शरारती थी। मैं जानती हूँ कि मेरी उम्र में मुझे ये करना नहीं था। मैं कुर्सी पर चढ़ गई और जैसे हमारे यहाँ कई बार बारिशों का दिन होता है। मैंने कुछ कपड़े लिए और मैंने एक छोटी सी लॉन्ड्री हैंगर लिया, एक मंजिल मॉडल। ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दरवाज़ों से मुंसलिक। आप जानते हैं, मैं कुर्सी पर चढ़ गई ताकि उसे वहाँ लटका सकूं और ये फिसल गई और मैं गिर गई और मेरी टांग कुर्सी के नीचे लटक गई, कुर्सी के अंदर, बिल्कुल कुर्सी के अंदर। जब मैं घर आया और इसकी हालत देखी तो बहुत दुखी नज़ारा था। मैं 1 घंटे से ज़्यादा अपने तवाज़ुन को बरकरार न रख सकी ताकि मैं कोशिश करूं और फर्श से उठूं क्योंकि दर्द बहुत शदीद था। मैंने इसे इमरजेंसी में जाने की पेशकश की लेकिन वो नहीं जाना चाहती थी। इसने कहा यीशु शिफा देगा। ये जुमेरात को हुआ, फिर जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल को मैं गिर गई और ऐन बावर्ची खाने में, और फिर मैं गिर गई, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह से गिर गई। सीढ़ियों पर चढ़ना नामुमकिन बन गया। मैंने अपने कमरे में नहीं जा सकती थी। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर चलती थी क्योंकि मैं अपनी टांग पर कोई वजन नहीं डाल सकती थी। वो कुछ नहीं कर सकी, आप जानते हैं, वो चल नहीं सकती थी, वो खड़ी नहीं हो सकती थी। मैं पूरा दिन घर रही, लिहाजा टीवी हमेशा ईमान का शो देखती। हर वक्त पास्टर दुआ करता, मैं दुआ करूंगी। ये पास्टर जाइमी हो सकता है, ये डॉक्टर सवारिस हो सकता है, या कोई और असिस्टेंट पास्टर, और मैं दुआ करूंगी दर्द कुछ कम हो जाएगा, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर नहीं जाएगा। एडलेना और इसका शोहर इंटरनेशनल ग्रेस ऑफ गॉड चर्च के मेंबर हैं और वो पोर्टो एलेग्री में डॉक्टर सुआरेस की इबादत में शरीक हुए थे, जो 18 अगस्त 2015 में बहुत अजीम काम करने के लिए मुनक्किद की गई थी। इस दिन जरा देखें। मैं तकरीबन 15 दिनों तक दर्द में रही, तो फिर मुझे यकीन था कि हाँ, मुझे शिफा हो सकती है। जब डॉक्टर सवारिस दुआ कर रहे थे, मैंने रिहाई को महसूस किया। आप जानते हैं, जब आपको यकीन होता है तो असल में कुछ होना शुरू होता है, और फिर दर्द ने कम होना शुरू किया और फिर गायब हो गई। ये हैरत अंगेज था। अब खुदा ने आपके लिए क्या किया बहन? तकरीबन 3 हफ्ते कबल मैं नीचे गिर गई थी और मेरी दायां घुटना मुड़ गया था और मैंने अपने कम्फर्ट को भी नुकसान आप पहुंचाया। कैसे चलती थी? इस तरह। तो अब मामूल से चलें। ओ खुदा की तारीफ हो, यीशु तेरे शुक्रगुजार। लिहाजा जब इबादत खत्म हो गई तो मैं इसे घर ले जाने के लिए आया और इसने कहा अब दर्द नहीं है। ऐसा हुआ जैसे कभी नहीं हुआ था, और अब मैं लेटती और सोती हूँ। वो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ती है और कपड़ों को लटकाती है, उसे कुछ नहीं महसूस होता। अब वो ठीक है। यस्सु ने उस दर्द को मुकम्मल तौर पर हटा दिया। अब यस्सु मसीह मेरी जिंदगी के हर हिस्से में आता है। वो मेरे लिए सब कुछ है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, या किसी के लिए भी। खुदा की तारीफ हो। खुदा किस तरह तेज नहीं था। आप देखते हैं कि आपका यहोवा खुदा के साथ रफाकत रखना कितना जरूरी है। अगर तुम मुझ में कायम रहोगे और मेरी बातें तुम में कायम रहेंगी, तो तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस किस्म की शराकत की तलाश करें, इस किस्म की नोयत के ना हो जो यीशु को बस एक दफा मिलता है, लेकिन ऐसे शख्स बने जो इसके दिल में रहता है और वो आप में रहता है। इस किस्म की रफाकत खुदावन के कलाम के जरिए होती है, आपके ईमान के जरिए जो आप खुदा के कलाम में रखते हैं। अब पहला सवाल सुने। डॉक्टर सवारिस, क्या खुदावंद खुदा की सच्ची इबादत किसी तारीफ के साथ मुंसलिक है? अच्छा, तो तारीफ का मतलब है किसी की कदर को तस्लीम करना। जब आप महसूस करते हैं कि आप तारीफ कर रहे हैं तो खुदा से बात करना शुरू करते हैं। लेकिन ये भी मिल जाता है तारीफ के साथ, क्योंकि खुदा बहुत अजीम है। वो साबिर है, जैसे योना परेशान था क्योंकि खुदा ने निनवा को निजात दी, तो इसने कहा, ऐ खुदावन तू साबिर है, तू रहीम है, तो सब कुछ। अब दूसरा सवाल।
डॉक्टर स्वारिस, रूहानी तौर पर बढ़ने से ना रुकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ इसकी पैरवी करने की जरूरत है कि खुदा क्या कह रहा है, क्योंकि वो मुसलसल देता है। मैं जिस्मानी तौर पर बढ़ने से रुका नहीं रहता, लेकिन मैं असल में इतना बड़ा नहीं बढ़ा हुआ था। मैं इतना लंबा नहीं हो गया था जितना खुदा चाहता था, लेकिन मैं छोटा नहीं रहता था। 19-20 इंच था जब मैं पैदा हुआ था और मैंने बढ़ना शुरू कर दिया जब तक कि मैं 5। मेरे जिस्म ने कहा काफी है, ये एक आदमी के लिए आम कद है। तो मैंने कहा खैर, अब मैं इस नुक्ता पर पहुंचा हूँ। रूहानी तौर पर मैं नहीं जानता कि किस म्यार तक चाहता है कि हम पहुंचे, लेकिन वो आपको मुसलसल रहनुमाई करेगा और आपको कलाम में बढ़ाएगा। डॉक्टर सवारिस, मुझे वाकई आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है, क्योंकि मैं थोड़ी परेशान हूँ इन शकों की वजह से जो मेरे दिमाग पर जुल्म कर रहे थे। मैंने मुख्तलिफ तंजीम से बपतिस्मा लिया था, लेकिन फिर मैं बरगश्ता हो गई, और जब मैं आपकी मिनिस्ट्री की मदद से ईमान में वापस आ गई हूँ, और जैसा कि मैंने अपनी मकामी टीवी के चैनल को आपके पुराने टीवी में चैनल 9 पर शो देखे हैं, मैंने सुना कि आपने ये सिखाया कि बपतिस्मा देने के लिए हमें यस्सु को कबूल करना चाहिए। ईमान का इकरार सबके सामने इस तरह हमारे नाम किताबे हयात में लिखे जाते हैं, लेकिन अगरचा मेरे पुराने चर्च में हम इस ईमान का इकरार सबके सामने नहीं करते थे। मैं और मेरे पोते ने यस्सु मसीह को अपना निजात दहिंदा आपकी टीवी शो के दौरान आपकी दुआओं के जरिए से किया। क्या हमें हर फर्द के सामने ईमान का इकरार करने की ज़रूरत है और फिर बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है? मुझे यहाँ कुछ बयान करें। जब मैंने सबके सामने ईमान के इकरार का जिक्र किया तो मेरा ये मतलब नहीं मैं यीशु को अपना निजात देंदा कबूल करता हूँ, लेकिन ये सबके सामने बपतिस्मा होता है। सबके सामने इसकी वजह से आप इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि आप यीशु को कबूल कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये अल्फाज कहने की जरूरत नहीं है। वहाँ एक आदमी था, इसका नाम दिलवांची था, जिसने कहा कि मोहब्बत का सबसे बड़ा ऐलान इस तरह नहीं किया जा सकता जो आप कहते हैं, लेकिन आपकी आंखों में नजर आता है ये अच्छा इसका नजरिया है। यीशु ने कहा कि सबसे बड़ा गुनाह ये है जब तुम किसी को बुरी नजर से देखते हो, और इसे छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंसान इसे जानता है, वो मेरे लिए बामकसद है। तो अगर आप बपतिस्मा याफ्ता हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, क्या ये सबके सामने था या फिर वहाँ आपको इन्होंने किसी जगह पर छिपाया था और कहा यहाँ कोई आपको नहीं देख रहा और इसका हिसाब नहीं होगा, और ये कि इसका मतलब है आप यीशु के नाम में खड़े हों। मेरे प्यारे भाई, मैं आप उनके लिए दुआ करूंगा जो घर पर हैं, तो फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आप जो घर पर हैं और जहाँ कहीं भी हैं, अस्पताल में, जो जेल में हैं, काम पर या किसी और जगह, तो मैं दुआ करता हूँ और मैं इन लोगों की ये नेमत को मांगता हूँ।